Assalamu alaikum students. Hope you are fine and enjoying these video lectures of artificial intelligence. Today we will cover a new topic of AI, which is agent, and this is the second chapter of artificial intelligence, a modern approach book. In this chapter we will cover these topics: what is agent and the examples of agent, rational agent, peace model, types of environment, and finally the types of agent. There are four different types of agent. First of all, simple reflex agent. Second type is model based reflex agent. Third type is goal based agent, and the last type of agent is utility based agent. Now we will discuss these topics one by one. So what is agent? Agent is anything that can take input or percept from environment through their sensors and perform some actions or output through their actuators in environment. Here is the basic diagram of agent. सो हम क्या करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ह्यूमन भी हमारे पास क्या है कि एजेंट है। ये क्या करता है, अपने हवास खमसा को यूज़ करते हुए इनपुट लेता है और उनको प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करता है, उसको किसी एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई आउटपुट परफॉर्म करता है। इन द सेम वे कंप्यूटर प्रोग्राम आल्सो टेक्स इनपुट यूजिंग कंसोल and after processing that input our computer programs perform output in console or in file or any other database. So the last example is robotics. Robot is also an agent that percept some input using their cameras or other sensors and perform some actions using their actuators. So in this diagram I have put a question mark, which is a very important question mark. So mathematically this is the agent function. Agent function that maps any percept sequence. So यहाँ पे मैंने percept sequence की बात की है, तो यहाँ पे कोई एक नंबर इनपुट नहीं आता बल्कि इनपुट का कोई एक प्रॉपर एक सीक्वेंस आता है। तो क्या है एजेंट फंक्शन? दैट मैप एनी गिवन परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, कि कोई भी जो सीक्वेंस आता है उसको एक्शन के ऊपर मैप करता है। फॉर आर्टिफिशियल एजेंट दिस जो मैथमेटिकल जो फंक्शन हमने एजेंट फंक्शन की बात की है, दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय एजेंट प्रोग्राम। तो एजेंट प्रोग्राम क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है। अगर एजेंट प्रोग्राम हम क्या करें, बड़े अच्छे तरीके से हम बनाएं तो ये परसेप्ट सीक्वेंस को बड़े अच्छे तरीके से उसके एक्शन के ऊपर परफॉर्म मैप कर देता है। So the next concept is rational agent. Good behavior, the concept of rationality. A rational agent is one that does the right things, but how can we measure the right things? So we have performance measure to evaluate the right things. The performance measure that evaluates any given sequence of environment states. यानी कि हमारे पास एजेंट क्या होता है जो कि आउटपुट परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो एनवायरनमेंट की फाइनली स्टेट्स क्या हैं, तो उन स्टेट्स को इवेलुएट किया जाता है। जो भी उसका सीक्वेंस है, जो भी गिवन सीक्वेंस आया था उसको उसने जो भी इन्वायरमेंट के अंदर नई स्टेट्स बनाई हैं उसका क्या कैसी हैं, वो उसकी बेस पे वो इवेलुएट करता है। तो परफॉर्मेंस मेजर हम इवेलुएट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि परफॉर्मेंस मेजर को हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास राइट थिंग्स हुई हैं कि नहीं। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ रैशनल एजेंट डेफिनेशन, देयर आर मेन फोर थिंग्स which are discussed in rational agent definition. First of all, the performance measure that defines the criteria of success. The second thing is agent's prior knowledge of the environment. तो हमारे agent के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ prior knowledge पहले से मौजूद होता है। And the third thing is action, the action that agent can perform. And fourth thing, the agent's percept sequence to data. तो हमारे पास ये चार चीज़ें जिनकी बेस के ऊपर इसकी डेफिनेशन होगी। तो लेट्स सी हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ रैशनल एजेंट: फॉर ईच परसेप्ट सीक्वेंस a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measure given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has. मतलब कि जो भी एजेंट के पास नॉलेज मौजूद है पहले से,
हमने पहले जो 4 स्टेप देखे उसके अंदर भी क्या था कि प्रायर नॉलेज, जो भी उसके पास प्रायर नॉलेज है वो क्या करे, जो भी हमारे पास सीक्वेंस आता है, परसेप्ट सीक्वेंस, मतलब जो भी इनपुट है और उसके अंदर जो भी बिल्ट इन नॉलेज पड़ा हुआ है, वो क्या करे, हमेशा अपने परफॉर्मेंस मैयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे या करता है, वो हमारे पास रैशनल एजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें, दोबारा फिर से इसको पढ़ें कि ऐसा एजेंट जो कि किसी भी परसेप्ट सीक्वेंस के ऊपर क्या करेगा, परफॉर्मेंस मैयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे। परफॉर्मेंस मैयर इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट उसका आता है, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे, और अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बुरा असर हो। तो ऐसे एजेंट को हम क्या करते हैं, कहते हैं रैशनल एजेंट। We always use any model when we are going to construct or develop anything. Here is the PEAS model, stands for performance, environment, actuators, sensors. This model is very helpful during the development of intelligent agent, as well as during the evaluation of our developed agent. Here is the example of taxi driver agent. When we are going to construct taxi driver agent, we must focus on these 4 parameters, which are the performance measure, environment, actuators and sensors. We should maximize the performance measure, and performance measure for taxi driver is our journey should be safe, our journey should be fast, legal, comfortable trip, maximize profit. So हमारे पास जो इस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टैक्सी ड्राइवर हमारे पास इनके थ्रू इनपुट आनी है, इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हमने ये वाली आउटपुट परफॉर्म करनी है, और इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाए कि हमारी परफॉर्मेंस मेजर मैक्सिमाइज हो जाए। अगर हमारी ये परफॉर्मेंस मेजर मैक्सिमाइज हो जाती है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो एजेंट है टैक्सी ड्राइवर एजेंट इज़ अ रैशनल एजेंट। सो यहाँ पे एक और भी MCQs बन जाता है कि P स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे MCQs का भी ख्याल रखिएगा कि इसको याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो इन नेक्स्ट स्लाइड देयर आर सम अदर एग्जांपल ऑफ एजेंट टाइप व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दीज एजेंट्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। सो व्हाट आर द परफॉर्मेंस मेजर of for this agent, what are the environment of this agent, what will be the input of this agent, what are the output of this agent। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ मेंशन कर दी हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। तो हमने जब भी डेवलप करना होता है तो हमें ये हेल्प करता है कि ये इस यहाँ से इनपुट आनी है, तो हम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इसकी इनपुट आनी है तो हम किस तरह से उसको कैप्चर करें, किस तरह से प्रोसेस कर सकें। इसके थ्रू हमने आउटपुट देनी है, तो वो आउटपुट हमने परफॉर्म करना है, तो जाहिर बात है प्रोग्रामेटिकली भी हमें ये चीज़ चाहिए होती है कि हमने आउटपुट जिसके थ्रू परफॉर्म करनी होती है उस तरह की हम आउटपुट बना के दे सकें। तो हम हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो ये सारी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप आफ्टर वाचिंग दीज एजेंट टाइप एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस का आइडिया भी हो गया होगा कि हमारी कुछ मॉडर्न एप्लीकेशंस जो हैं उनमें से कुछ मॉडर्न एप्लीकेशन हमारे पास इस तरह के हैं, इस तरह से यहाँ पे एजेंट टॉपिक के अंदर ही कवर होती हैं। तो इसमें हमने जो अभी तक देखी है, कोई एजेंट का स्ट्रक्चर देखा है, एजेंट का फंक्शन देखा है कि हमने इनपुट आनी है, आउटपुट परफॉर्म करनी है, किस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए काम करना है। सो ये पॉसिबिलिटी ये है कि एक एजेंट एक इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकता है, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर वो जो है वो अच्छा काम ना कर सके। तो इस तरह से कि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स की है। सो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट किस तरह के आते हैं। तो आई हैव मेंशन्ड सम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। So there are total 5, some other are mentioned in book. So fully observable versus partially observable, single agent, multi-agent, deterministic, stochastic, static, dynamic, discrete and continuous environments. These are the different types of environment. Fully observable
So if an agent sensor give it access to the complete state of environment at each point in time, so अगर इस तरह से हो जाए कि हमारे पास क्या है कि हमारा जो सेंसर है वो सारी की सारी environment की states की information जो है वो दे दे, तो ऐसे environment को हम fully observable कहते हैं. अदरवाइज वो environment क्या हो जाता है, वो partially observable हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम एक एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल के बारे में, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्सी ड्राइवर एजेंट जो है वो गाड़ी चला रहा है, तो आगे से एकदम गाड़ी आ गई है, उसको ब्रेक लगाना पड़ गई है, तो ये हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है, क्योंकि हमें उसकी कंप्लीट डिटेल का नहीं पता होता कि किस टाइम पे कौन सा हमारा जो साथ में चला के गाड़ी चलाने वाला है क्या कर दे, तो उसकी कंप्लीट स्टेट्स का नहीं पता, तो लिहाजा वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है. तो पार्शली ऑब्जर्वेबल के अंदर थोड़ी सी हमें तो हिस्ट्री को भी मेंटेन करना होता है, लेकिन फुली ऑब्जर्वेबल हमारे पास बड़ा कन्वीनियंट है, इसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं करनी होती. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रशर है, तो उसके सामने चीज़ें आनी है, उसने उसको काटे जाना है, लेकिन पार्शली ऑब्जर्वेबल के अंदर हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री को भी हम मेंटेन करते हैं. तो हमारे पास सेकंड जो टाइप है एनवायरनमेंट की, वो है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट. तो ऐसा एनवायरनमेंट इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल चेस में 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट बन जाता है. इसी तरह से अगर कोई पज़ल को सॉल्व कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट बन जाता है. तो मल्टी एजेंट में 2 एजेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो 2 एजेंट ये दोनों कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं. कोऑपरेटिव किस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं क्राउड में से गुज़र रहा हूँ, तो एक मेरे साथ एक ऐसा एजेंट है जो कि मुझे किसी टकराव से बचा रहा है, तो वो मेरा कोऑपरेटिव हो जाएगा. और जो कंपटीटर दूसरी टाइप आ जाती है, तो कंपटीटर के अंदर क्या है कि जो चेस है, तो वो मेरा कंपटीटर बन जाएगा दूसरे वाला एजेंट. सो द थर्ड टाइप इज़ डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक. तो डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम एक जगह पे खड़े होते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेट का हमें पता चल जाए, तो ऐसे एनवायरनमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट कहते हैं. अगर उस स्टेट पे खड़े होकर नेक्स्ट का ना पता चल सके, तो वो हमारे पास स्टोकेस्टिक बन जाता है. फोर्थ टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. सो अगर हमारे पास क्या है कि एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट को देख रहा है सेंसर्स के थ्रू, तो कोई चेंजेस ना आए हमारे पास, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम स्टैटिक एनवायरनमेंट कहते हैं. तो अगर कोई चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे वो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसको देख रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमारे पास डायनामिक एनवायरनमेंट हो जाएगा. And the last type of environment is discrete versus continuous. If we represent our state by a distinct number, then the type of environment is discrete. Otherwise, the type of environment is continuous. For example, in the case of chess playing environment, we can represent any state with a distinct number. So the environment of chess game, chess playing agent is a discrete environment. On the other hand, the taxi driver environment is continuous environment. For example, we represent the location of taxi with a continuous number, not any distinct number. For example, meters में हम उसका बताते हैं कि इतने मीटर में उसका डिस्टेंस हो गया है, तो इसी वजह से उसका एनवायरनमेंट जो है वो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट हमारे पास हो जाता है. So here is another definition of agent. Agent is equal to architecture plus program. In all our previous slides, we have discussed about environment, sensors, actuators, which is the architecture of agent. But the other part of program, we also discussed about program, agent program, mathematical function, which convert the percept sequence into the action. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोग्राम को हम देखते हैं. जैसे ही मैं क्या करूँगा कि प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफ़र करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो साथ ही मेरे पास क्या हो जाएगा, एजेंट की टाइप डिफरेंस हो जाएगी. आर्किटेक्चर मेरे पास वही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा,
कि इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक नई उसकी टाइप बन जाएगी। तो देखते हैं। तो here is a 4 different types of agent which is due to changing in agent program. First type is simple reflex agent, and the second type is model based reflex agent, goal based agent, and finally we will discuss about utility based agent. So just look at the properties of simple reflex agent. These are the 4 properties. These agents select actions on the basis of current percept, ignore the percept history, environment is fully observable, condition action rule if then, मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट जो भी परसेप्शन आती है, परसेप्ट करता है, इनपुट आती है, उसी की बेस के ऊपर ये काम करता है। कोई इसकी करंट हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होती कंप्यूटेशन जिसके ऊपर लगे, और ये इसका एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होता है। परसेप्ट हिस्ट्री ना होने की वजह से तो इसका क्या होता है कि इसकी कंप्यूटेशन पावर इतनी इसको ज़रूरत नहीं होती, तो फ़ौरन जैसे उसकी इफ़ एल्स की कंडीशन एक्शन रूल की बेस के ऊपर काम करता है, जैसे उसकी कंडीशन फुलफ़िल होती है और साथ ही उसका एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा एजेंट बनाने जा रहे हैं जो कि क्या कर दे, इसी को ऑन ऑफ करे। फॉर एग्जांपल इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 50 डिग्री देन टर्न ऑन द एसी। तो ऐसा एजेंट क्या करेगा, जैसे ही उसको टेम्परेचर इससे ग्रेटर मिलेगा तो वो फ़ौरन क्या कर देगा, इसको एसी को ऑन कर देगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट से हमारे पास इनपुट आती है, तो इन्वायरमेंट के क्या है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। उसके बाद फिर इसकी क्या है कि कंडीशन एक्शन रूल जैसे ही फुलफिल होता है तो ये एक्शन उसको ऊपर परफॉर्म करके एक्चुएटर्स की मदद से ये उसको आउटपुट परफॉर्म कर देता है। ये सिंपल उसका स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ उसकी ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, तो वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि इफ़ देन रूल के ऊपर काम करता है। तो इस तरह के कुछ MCQs बन जाते हैं, तो उनकी ये एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को इनको पता होना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास क्रशर की है, जैसे उसके सामने कोई पत्थर आएगा उसको क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा। उसके लिए कोई हमें नहीं, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग इतनी, उसकी कंप्यूटेशन पावर नहीं, जैसे इसकी इफ़ की कंडीशन पूरी होती है वो फ़ौरन उसको चला देता है, उसको तोड़ देता है। So here is the second here is the diagram of model based reflex agent, which is the second type of agent. It will takes the input from environment using their sensors and perform output in environment using actuators. The condition action rule is same as the simple reflex agent. So देखें तो यहाँ पे reflex agent का उसी तरह से नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसी की ही थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म है। सो बट जो मेन डिफरेंस है इसका और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का, तो ये वो ये है कि हम ये करंट स्टेट को भी यूज़ करता है और साथ साथ ये प्रीवियस हिस्ट्री को भी यूज़ करता है। तो जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स। सो हेयर इज़ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये कोई भी जो हमारे पास करंट स्टेट है या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको यूटिलाइजेशन नहीं करता, लेकिन ये वाला एजेंट करता है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माई एक्शन डू, कि मेरे एक्शन क्या करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसको इनपुट के तौर पर जाती हैं, और जैसे ये इफ एल्स की कंडीशन फुलफिल होती है तो ये चीज़ परफॉर्म कर देता है। तो इसके मेजर थोड़े से 2 पॉइंट्स हैं कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल द पार्शियल एनवायरनमेंट, स्टोर द प्रीवियस परसेप्ट हिस्ट्री। सो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि हमारे पास जो पार्शली ऑब्जर्वेबिलिटी में काम करता है। तो हमारे पास टैक्सी ड्राइवर है, हमारे पास टैक्सी एजेंट है। तो वो एजेंट क्या करता है कि उसके अंदर उसी तरह से पार्शल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है, और जैसे उसके सामने कोई गाड़ी आती है, यानी कि वो एक रोड के ऊपर जा रहा है, सामने से यकदम एक गाड़ी आती है, तो वो अपनी क्या करेगा कि प्रीवियस हिस्ट्री को यूज़ करते हुए जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म करके वो हमें आउटपुट पर दे देगा। तो यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, और स्ट्रक्चर को देखने के साथ साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा।
तो हमारे पास क्या है कि करंट हिस्ट्री और करंट स्टेट और प्रीवियस हिस्ट्री ही काफ़ी नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमने पहुंचना क्या है, हमने हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हम जा के कर रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आवर थर्ड टाइप इज़ गोल बेस्ड एजेंट। तो इसके अंदर देखें कि दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ मॉडल बेस्ड एजेंट, डिज़ायरेबल सिचुएशन, सर्चिंग एंड प्लानिंग। तो इसके अंदर क्या है कि हमें गोल की तलाश होती है, इफ एल्स की कंडीशन की जगह पर हम क्या करते हैं कि ये गोल लगा देते हैं। इसके अंदर सर्चिंग एंड प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है और ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। तो जस्ट इसकी एक दफ़ा हम डायग्राम को देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि इसकी करंट स्टेट भी आती है और साथ साथ इसके क्या है कि ये प्रीवियस हिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन यहाँ पे साथ में हमारे पास कुछ इसकी प्लानिंग भी हो रही है। मेन कि ये अपनी सर्च हिस्ट्री के अंदर, प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ये पूरी की पूरी प्लानिंग और साथ उसकी सर्च स्पेस भी बिल्ड करता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास गोल आता है, गोल जैसे आएगा यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन नहीं है। इससे प्रीवियस जो हमने मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ा या सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन यूज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गोल हो रहा है। तो प्लानिंग और सर्चिंग के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये गोल हम गोल को फाइंड करता रहता है। जैसे इसको मिलता है तो ये फ़ौरन उसके एक्चुएटर्स की मदद से ये इन्वायरमेंट के ऊपर ये हमें उसका एक्शन परफॉर्म करके दे देता है। तो ये गोल बेस्ड एजेंट, ये हम आगे थर्ड चैप्टर के अंदर भी हम अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है उसके अंदर हम गोल बेस्ड एजेंट जो है उसको यूज़ करेंगे। सो हमारी जो लास्ट टाइप है वो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। Utility based agent focused on utility, not goal. It contains utility function that deal with the happiness or unhappy state. तो यहाँ पे हमारे पास ये happiness और उसको unhappy state को देखता है, बजाय इसके कि वो गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करे। तो जस्ट इसकी देखें यहाँ पे करंट स्टेट और प्रीवियस हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे देखें कि आया कि वो हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, कि जो भी उसकी हालत होती है उसके ऊपर देखता है। यूटिलिटी की इनपुट आ रही है यहाँ पे कि कितना वो अपनी स्टेट के साथ हैप्पी है या नहीं। तो इसकी एग्जांपल को देखते हैं, के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक जगह से जाता हूँ, गोल तक पहुँचने के मेरे पास 3 डिफरेंट तरीके थे, तो मैंने वो वाला तरीका चूज़ कर लिया जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर था। लेकिन थोड़ा सा मैं जैसे आगे आता हूँ तो वहाँ पे ब्लॉक है रास्ता मुझे मिलता है। तो ब्लॉकेज होने की वजह से मैं वहाँ पे मेरी स्टेट जो होगी वो क्या होगी, वो उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। तो ज़ाहिर बात है जब मैं ब्लॉक की हालत में हूँ तो वहाँ पे मैं हैप्पी तो नहीं हूँगा ना। तो वहाँ पे दोबारा फिर मैं अपने गोल के पाथ को दोबारा फिर कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं उस स्टेट के ऊपर हैप्पी नहीं था। तो उसको गोल की तरफ दोबारा फिर कंप्यूट करूँगा रास्ता और उस रास्ते की तरफ निकल जाऊँगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि मेरे पास क्या है कि जैसे हम थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस लेके आएंगे तो हमारे पास नई टाइप बन जाएगी। तो जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास जस्ट इफ़ एल्स का रूल था कि जैसे हमारे पास इफ़ की कंडीशन पूरी होती है तो एल्स देन हम वो वाला काम कर देते हैं। सेकंड के अंदर हम क्या लेके आए कि थोड़ा सा हम प्रीवियस हिस्ट्री को लेके आए, जो कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट बन गया। तीसरे के अंदर हम क्या किया, हमने गोल लेके आते हैं। तो गोल लेके आने से एक हमारे पास नया एजेंट बन जाता है। हम इसके अंदर प्लानिंग और सर्चिंग भी लेके आते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, लास्ट पे हमारी जो टाइप है तो वो उसके अंदर हम थोड़ी सी हैप्पी स्टेट को भी देखते हैं, यूटिलिटी को लेके आते हैं। तो ये देखें कि थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस लेके आने से हमारे पास जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप बन जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने एजेंट की डेफिनेशन को देखा, उसके साथ हमने 3 उसकी एग्जांपल्स को देखा, एजेंट फंक्शन के बारे में बात की, एजेंट प्रोग्राम के अंदर बारे में बात की, और फिर हमने रैशनल एजेंट की डेफिनेशन को देखा, हमने उसकी बात की। हमने उसके बाद पीज मॉडल को देखा कि पीज मॉडल हमारे पास किस तरह से हम कोई भी एजेंट बनाने जाते हैं तो किस तरह से हम उसका पीज मॉडल हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और फाइनली हमने उसके डिफरेंट हम जो हमारे एजेंट होते हैं किस तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जाके काम करते हैं और कौन कौन से वो एनवायरनमेंट हैं उसकी डिटेल को देखा। और आखिर पे हमने अपने एजेंट की डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा और उसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स की बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।